Who is Grand Mufti of India? How he has helped out Nimisha Priya's case when Indian government couldn't. The fate of Nimisha Priya, who was supposed to be executed yesterday, was saved by faith this time. It was not the faith in terms of prayers, rather it was in terms of a person, that is Grand Mufti of India, who saved and deferred this execution through non-state diplomacy and moral grounds. Hello everyone, welcome to Vajiram and Ravi's Flash News. My name is Shubhangi Singh. Today we'll be talking about the main Indian government efforts that have taken place, how it could have helped, and what were the limitations that were placed on Indian government. Then we will be looking into that, who exactly is Grand Mufti of India, what is this title, and how he saved the hour by coming into the picture and playing a major role here. So when we talk about this particular case, you have to understand that when we are talking about citizens from our country being placed in different countries, very different. But when we are talking about them being placed in a country where the diplomatic channels are closed, such as Yemen, makes it more difficult for the country to help and also protect the citizens and also provide channels for them. This was a case of Nimisha Priya, who has been sentenced to death in Yemen for the murder of a Yemeni person, Yemeni national. Now, even though whatever have been the personal background, personal story to it, the problem in this whole scenario was the fact कि यहाँ पे जो डेथ सेंटेंस दिया गया है उसको एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस थे. At the same time, because Yemen is controlled by Houthis, we have to understand we do not have any diplomatic channel there. So यहाँ पे डिप्लोमेसी जो था उसके एक नया फॉर्म जो है हमें देखने को मिला, जहाँ पे हम नॉन स्टेट डिप्लोमेसी देख रहे हैं, फेथ डिप्लोमेसी देख रहे हैं, और यहाँ पे मर्सी जिसकी वजह से फाइनली ये एग्जीक्यूशन जो हुआ है डेफर हुआ है, इसको डिले किया गया है. किस बेसिस पे कि यहाँ पे मर्सी जो है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे देनी चाहिए rather than focusing on religious grounds. Now, this whole case, if we talk about, basically Nimisha Priya is a Indian nurse who is from Kerala and she was in Yemen practicing. She had her own clinic और यहाँ पे situations तब खराब हुई, उनके apparent friend जो यहाँ पे येमेनी national थे उनके साथ involvement रहा, दिक्कतें हुई, and finally there came a situation where this Yemeni national was murdered. Yes, when we talk about justice, this seems right, but when we talk about Sharia law, execution here seemed a little extreme. So when we are talking about this particular case, अगर हम यहाँ पे legal framework जो हमारे सामने है present देखें, तो वो हमारे सामने शरिया लॉ ही है, और यहाँ पे शरिया लॉ के बेसिस पे ही यहाँ पे कन्विक्शन जो है किया गया था, और ये डिसाइड हुआ था कि इनका जो है एग्जीक्यूशन होगा. So Nimisha Priya was up for execution and the only way out here you could find was the fact that यहाँ पे ब्लड मनी जो अगर दे दिया जाता, किसको दे दिया जाता? रिलेटिव्स को, विक्टिम की फैमिली को अगर ब्लड मनी दे दिया जाता, एंड दैट इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन, दैट इज अ प्राइवेट मैटर, कि अगर विक्टिम की फैमिली ब्लड मनी एक्सेप्ट करती है दैट्स देयर कॉल, अगर नहीं करती है तो भी ये उनका ही कॉल है. So in this case, the final decision exclusively is with the victim's family. And for the longest time यहाँ पर ये क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि विक्टिम की फैमिली किस फेवर में है, ब्लड मनी की बात अगर हो रही है तो कैसे यहाँ पे मैनेज होगा. और फाइनली एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो ये एग्जीक्यूशन जो है वो डेफर कर दिया गया है, एंड यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज हियरिंग द प्ली फ्रॉम द सिविल सोसाइटी. उन्होंने जो यहाँ पे कैंपेन चलाया था टू सेव निमिशा प्रिया, उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, वो भी यहाँ पर सारे जो मूवमेंट हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रहा है और यहाँ पे चैनल्स प्रोवाइड कर रहा था. तो अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े और बात करें कि व्हाट एग्जैक्टली डिड इंडियन गवर्नमेंट डू, इस कॉन्टेक्स्ट में हमने स्टार्टिंग में भी मैंने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट के पास जो ऑप्शंस थे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे, बट वो लिमिटेड ऑप्शंस में भी इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एग्जैक्टली क्या किया है. इफ यू टॉक अबाउट इंडियन गवर्नमेंट, they had to engage in informal diplomatic channels. Reason being,
they do not have any state diplomacy because they do not recognize Houthis who are controlling Yemen as of now. So there is no recognition for the same. But at the same time, through the non-diplomatic channels, there was request for execution deferral. और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पर इनफॉर्मल डिप्लोमेसी से किस तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूशन जो है वो डिफर हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिला कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली डेफिनेटली ब्लड मनी नहीं दे सकती है, क्योंकि वो एक प्राइवेट मैटर है। शरिया लॉ के हिसाब से यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन के लिए अगर उसको हटाना है ब्लड मनी दिया जाएगा तो फैमिली द्वारा दिया जाएगा। बट यहाँ इंडियन गवर्नमेंट हैज गॉन अहेड एंड प्रोवाइडेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रैवल एंड कोऑर्डिनेशन with the family members of Nimisha Priya. They have all given pro-legal as well as counselor assistance. And यहाँ पे blood money तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं दे सकती है, but whatever efforts were required by the family to make sure that they get the blood money and यहाँ पे negotiation हो सके। अगर उनके पास blood money है भी और victim family उसके लिए मना कर देती है तो भी ये सोल्यूशन जो है, रेजोल्यूशन जो है सिचुएशन में नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे नेगोशिएशन एंड रेजिंग ब्लड मनी बाय द फैमिली, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट हैज गॉन अहेड एंड हेल्प्ड इन दिस सिनेरियो एज वेल। बट एज आई सेड कि काफी लिमिटेशंस हमें देखने को मिली। व्हाट वर दोज लिमिटेशंस? द फर्स्ट लिमिटेशन वाज द फैक्ट दैट द इंडियन गवर्नमेंट कुड नॉट डायरेक्टली गो अहेड एंड पे द ब्लड मनी, क्योंकि ये एक प्राइवेट सेटलमेंट है। विक्टिम की जो फैमिली है और जो यहाँ पे कन्विक्टेड मेंबर है उसकी जो फैमिली है उनके बीच ये सेटल होगा। इस वजह से शरिया लॉ में क्लियर है और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इसमें ब्लड मनी में इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी। इसके अलावा ऑफिशियल नेगोशिएशन जो है, क्योंकि यहाँ पे एज आई सेड द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट रिकॉग्नाइज्ड हाउथी अथॉरिटीज, तो यहाँ पे कोई ऑफिशियल नेगोशिएशन की पॉसिबिलिटी नहीं थी। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट किसी भी तरीके की गारंटी, चाहे वो रिलीज की हो या क्या आउटकम आने वाला है उसकी ले सकती है, क्योंकि यमन की अगर बात करें तो ये उनका अपना सोवरेन लीगल प्रोसेस है। जैसे हम कभी नहीं अलाउ करेंगे किसी थर्ड पार्टी को हमारे सोवरेन मैटर्स में, सोवरेन प्रोसेसेस में एंटर करने के लिए, सिमिलरली यहां पर भी वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो इंडियन गवर्नमेंट कुड नॉट टेक अप एनी गारंटी ऑफ रिलीज और आउटकम एज वेल। एंड देयर वाज नो वे फॉर इंडियन गवर्नमेंट कि यहाँ पे जो येमेनीज लॉ है उनको ओवरराइड किया जा सके और किसी तरीके से फोर्स प्रेशर क्रिएट किया जा सके इन टर्म्स ऑफ द सोवरेन प्रोसेस दे हैव, चाहे वो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन से हो या नॉन डिप्लोमेटिक सोल्यूशन से हो। सो नाउ इफ यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन वाज वेरी डिफिकल्ट, जहां पे विक्टिम फैमिली जो थी किसी तरीके का नेगोशिएशन नहीं हो रहा था एंड फाइनली यहाँ पे जो निमिषा प्रिया का एग्जीक्यूशन है वो डिफर हुआ है। वो कैसे हुआ है? यहाँ पे जो हमें डेफरमेंट देखने को मिला है दैट इज कमिंग फ्रॉम ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया। Now, who is Grand Mufti of India? When we talk about Grand Mufti of India, he is none other than Sheikh Abu Bakr Ahmad. Now, when we talk about this particular person, he is a highly respected Sunni Islamic scholar who is from Kerala. And यहाँ पे जो हम टाइटल दे रहे हैं ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया, ये एक ऑनररी टाइटल है जो उनको 2019 में बाय ऑल इंडिया तंजीम उलामा इस इस्लाम के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे ये जो टाइटल है दैट इज नॉट एट ऑल एन ऑफिशियल गवर्नमेंट पोस्ट। हमें ये समझना होगा कि गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है, बट ये डेफिनेटली एक पैन इंडिया रिलीजियस इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ दिस टाइटल इज गिवन टू शेख अबू बकर अहमद। यहाँ पर यही वो पर्सन है जिन्होंने यहाँ पर नेगोशिएशन फैसिलिटेट करवाने की कोशिश की और साथ ही साथ ये जो फाइनल एग्जीक्यूशन में डेफरमेंट आया है वो हमें देखने को मिला। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डिड ही डू दैट? इन्होंने ये कैसे किया? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसेस देयर वर टू मेन एस्पेक्ट्स टू इट। द फर्स्ट वन, डिप्लोमेटिक एंड रिलीजियस मीडिएशन। यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा फॉर्मल डिप्लोमेटिक चैनल्स जो थे प्रेजेंट नहीं थे, यहाँ पे इन्होंने रिलीजियस चैनल्स को यूज किया जहाँ पे अर्जेंट टॉक्स इन्होंने कंडक्ट की विद द सीनियर इस्लामिक रीडर्स जो कि यमन में थे। तो इनका जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से इनको कनेक्टिविटी मिली विद द रिलीजियस लीडर्स इन यमन
and he also contacted the renowned Sufi cleric that is Sheikh Umar bin Hafiz, ताकि यहाँ पर वो इंटरसीड कर सके जो विक्टिम की फैमिली है और इन विक्टिम की फैमिली से ब्लड मनी की बात हो सके, इस बारे में नेगोशिएशन जो है हो सके. एंड ही वॉज द वन हु लेवरेज्ड रिलीजियस डिप्लोमेसी, फेथ डिप्लोमेसी टू रिक्वेस्ट कि यहाँ पे कंपैशन के ग्राउंड्स पर एग्जीक्यूशन को डिले कर देना चाहिए. यहाँ पर इन्होंने अपील की कि हमें ह्यूमैनिटी पर फोकस करना चाहिए, ना कि रिलीजन पे जो कि अक्यूज्ड का है, और यहाँ पे जो मर्सी आ रही है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे होनी चाहिए, ना कि किसी भी रिलीजियस एफिलिएशन पे. एंड through these efforts we were able to see the execution that has been deferred for Nimisha Priya. Now when we talk about his role, the major outcome, as I said, कि यहाँ पे जो हमें execution जो है deferred देखने को मिला है, सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा भी यहाँ पर जो उनका contribution है वो ये रहा है कि जो यमनी स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट है उन्होंने एग्जीक्यूशन पोस्टपोन किया, और साथ ही साथ एक चैनल, एक विंडो जो है ब्लड मनी नेगोशिएशंस के लिए खुली है बिटवीन निमिशाज फैमिली एज वेल एज द विक्टिम्स फैमिली. सो यहाँ पर आने वाले टाइम में जहाँ पे एग्जीक्यूशन अभी सिर्फ डिले हुआ है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज नेगोशिएशन विंडो इज नाउ ओपन यहाँ पर कि निमिशा प्रिया का जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे रद्द हो जाए, उसे कैंसिल कर दिया जाए. Now, this particular news becomes important for us to understand the fact कि जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं हमेशा हम इसको स्टेट डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, फॉर्मल डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं. बट विद चेंजिंग टाइम्स देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी, बी इट टॉकिंग अबाउट वर्कफोर्स डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर, वी आर टॉकिंग अबाउट कल्चरल डिप्लोमेसी, एंड टुडे वी सी अ splendid example when we are talking about non-state faith diplomacy. And that's why in the starting I said कि the Indian daughter has been saved by faith, and it is not because of prayers but because of the Grand Mufti of India who took efforts. It went beyond what government, Supreme Court could not do because of the jurisdiction, the limitations they have, even if they wanted to. It happened because of Grand Mufti of India. Now it is not just the non-state diplomacy that is in front of us, that is why it matters. It is also the fact that it also reflected upon the power of moral authority that is still applicable in chaotic and conflict zones, and this can be used to make sure that the moral directions are actually taken. और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैप जो है हमें ब्रिज होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे फॉर्मल डिप्लोमेटिक चैनल्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स जो हैं प्रेजेंट हैं, वहां पे हमारी ये नॉन स्टेट डिप्लोमेसी, फेथ डिप्लोमेसी काम करेगी. नाउ अ क्वेश्चन टू यू इज, with the changing times that we see across the globe, what are the forms of diplomacy that India should focus on in coming times so as to ensure that we are rising in the order of global leader? That was all for now. Thank you so much.